Good. So based on the technology, we can see different identification methods. तो डेटा टाइप्स क्लियर हो गए सबको, बिकॉज यू विल हैव सारे इंटरव्यू में मोस्टली आपको डेटा टाइप से शुरू होता है. व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन सीक्वल. ओके, ऐसे इंटरव्यू में शुरू किया जाता है. सो यू शुड बी 100% श्योर कि कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है. राइट? क्लियर everybody? Yes, no? You can show thumbs up if you are able, if you understand what I'm saying. Okay, only one person. या सिर्फ तुझे आपको समझ में आया क्या? What about others? काजल, कावेरी, किरण, मोहित, ओंकार. Yes, साहस, सुहानी, श्रुतिका. There are 15 people and only 3 people have raised their hand. 16 people. Okay, I can see 4-5 guys. Yes, data type is one of the important concept और इसे समझना बहुत important है. You can show thumbs up if you are able to identify what are the different data types available. Okay, ठीक है. So if you know what I mean by data types, then now the question is, जो भी आपको date column में numbers दिख रहे थे, okay, that is because of data type issue. Okay, ये data type mismatch के वजह से ये issue आता है. Okay, क्या data type mismatch है? Mismatch in the sense, suppose आपने कुछ नंबर लिखा है but software is identifying it as a text or identifying it as some different data types. Then in that case your Excel will get confused. For example, let me show you the slide. ये देखिए, यहाँ पे order date है and this order date has mismatched data type. So shift control down. What I will do, I will select the complete cell, right click, go to format cells. Okay, in the format cell you can select the appropriate data type. So tell me now, based on your knowledge, which data type you should use. Okay, Date. date, right? Absolutely, because column says it is order date, so definitely you should use a date. So click on date, and if you are monitoring closely, if you are observing closely, there are different date formats are also available, right? So what are, okay, so the date which I wanted to show you is, ये देखिए, यहाँ पे आप जब भी डेट सिलेक्ट करते हो यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेट एज वेल बेस्ड ऑन द कंट्री लोकेशन, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना. ये देखिए, ईयर है, डेट है, कंप्लीट फुल लिख के चाहिए तो वो है. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई सिलेक्ट दिस, प्रेस ओके, so this is how the date will look like. Here now it is appropriate. नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, whenever you have the numbers instead of date, उसके ऊपर कैलकुलेशंस एज इन समेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे कैलकुलेशन हो जाते हैं, सम, डिवाइड, ऐसे. That's why it is important to maintain a data format across the table. जो भी आप डेटा पे काम कर रहे हो उस पे डेटा फॉर्मेटिंग करना इम्पोर्टेंट है. और इसका एडवांटेज बहुत है. वन ऑफ द एडवांटेजेस, यू विल गेट ऑटोमेटिक सजेशंस. जब भी आप कुछ फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सजेशंस मिलते हैं. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज. एज वेल एज जब भी आप आगे एडिशनल फंक्शनैलिटी यूज करोगे किसी भी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल डेट है तो डेट रिलेटेड आपको सजेशंस आएंगे. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज कंट्री, रीजन एंड मार्केट. इनका डेटा टाइप क्या रहेगा? आई एम सिलेक्टिंग एंटायर डेटा, right click, go to format cells,
what should be the data type here? Text. Text, sure. Okay, that's good. So text, press OK. So this is a text. Okay, good. Then product ID, right click, format cells. Product ID में क्या होगा? Hmm? Product ID will be number or text or something else. Okay, if you want customization आप custom create कर सकते हो यहाँ से. ये देखिए, ये generally time and date related customizations आप करते हो. Okay, but in our case there is no fixed format. Okay, so you can keep it as a general. ये जो ऊपर दिख रहा है general, you can keep it a general because it is mix of date, mix of text, mix of number, एक special character भी दिख रहा है called dash वगैरह. Okay, understood? So this is what you can do it. Then what about technology category? For example, okay, ये technology 1 नहीं चाहिए था. That's the, by the way, there is a correction in technology. जो spelling है यहाँ से 1 हटाना है. तो anyone knows कि कैसे हटाते हैं इसके? It is just a typing mistake. और typing mistake वगैरह है, correction करना है तो कैसे करते हैं? Just I know थोड़ा out of context हो रहा है, but अभी दिख रहा है हमारे सामने तो let's address it. Yes, anyone knows कि how should I remove this? Hmm? Yes, Anand. Replace. There is an option called replace. क्या कर सकते हो आप? You need to select the data. Control, Shift and down arrow. Then go to data. Okay. Uh, okay. Sorry. Home tab में replace option मिलेगा आपको यहाँ पे find and replace. ये देखिए replace दिख रहा है यहाँ पे. So you click on that. Then क्या ढूंढना है आपको? 1, right? And replace क्या करना है? Blank से. So you keep it blank and then ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है रिप्लेस 1 विथ ब्लैंक और रिप्लेस ऑल करना है. आपको और एडवांस ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से एडवांस ऑप्शन के बाद सर्च कर सकते हो, मैच केस वगैरह है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्लीन द डेटा. आपको डेटा क्लीनिंग वगैरह करना है तो यू कैन क्लीन दिस डेटा. ओके, ओके. नाउ यू टेल मी व्हाट दिस टू मीन. मतलब कैटेगरी, सब कैटेगरी or even product name I can include as well, right? So product name, this is again a textual information. So right click, format cells and text. Very simple, very basic, right? Now is the question. चलो अभी बताइए sales. Right click, क्या आना चाहिए? Anyone? Right click. By the way, there is a shortcut as well. यहाँ पे आप home tab में click करोगे ना, home tab and this, ये देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिलता है डेटा फॉर्मेटिंग का. यू कैन सिलेक्टली, ये देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिलेक्ट आप कर सकते हो. टाइम है, डेट है, नंबर है, करेंसी वगैरह सब कुछ. चलो बताइए सेल्स का क्या करना है. व्हाट इट शुड बी? फॉर्मेट सेल्स, Currency. करेंसी. व्हाई? Yeah. नंबर भी है ना. द नंबर, आई कैन क्लियरली सी द नंबर हियर. यस. एनीवन, एनीवन हैज एनी डिफरेंट ओपिनियन? किसी को डिफरेंट, आपका कुछ ओपिनियन अलग है? यस, नो, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? नहीं तो एक काम करो, टेक्स्ट कर दो, खत्म बात है ना. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द टेक्स्ट. और कीप इट जनरल. व्हाई टू बॉदर? यस, नो, ओके. क्या लगता है आपको?
Okay, if you are joining for the first time, I guess I can see if few people have joined today, और कोई अब फर्स्ट डे है तो प्लीज डू वॉच प्रीवियस लेक्चर्स, देन ओनली थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा. Just to revise, we are starting. Uh, okay, round off decimal value. Okay, decrease, increase. Okay. No, I am asking about the formatting. डेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसमें से आपको बताना है. देखिए लिस्ट है यहाँ पे, मैंने ओपन किया है. If number y, if currency y. That's it. I'm more interested in that. Hmm? Okay, let's understand. Let's understand from एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. Let's suppose आप शॉप, आप मैकडोनल्ड्स में गए. ओके, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, और ऑर्डर वैल्यू हो गया कुछ 800 रुपीज, राइट. 800 रुपए का आपने कुछ परचेज किया है, राइट. बट मोमेंट यू पे, जब भी आप पे कर रहे हो, बट देन यू रियलाइज, ओके, करेंसी आप चूज करोगे तो सिंबल आएगा. yes, absolutely symbol आएगा, but that is not the highlight, or that is not the technical answer, I would say. सपोज जो भी आप पे करते हो यूपीआई से वगैरह, राइट, और आपको 800 पे करना है बट आपके अकाउंट में है सिर्फ 600. इज इट पॉसिबल? कंप्लीट होता है क्या ट्रांजैक्शन? No. ओके, क्यों नहीं होता? ये तो सिर्फ नंबर है, आप नंबर ही पास कर रहे हो ना, आप थोड़ी कुछ पैसा दे रहे हो यहाँ पे फिजिकली. क्यों नहीं होता? यस, एनीवन? नो. Why? Because even though जो आपके बैंक अकाउंट में दिखता है और आपके यूपीआई ऐप में दिखते हैं, that is a number, it has a, उसको एक्चुअली बोलते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू. ओके, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू. तो जो भी करेंसी होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ओके, इट इज अ ट्रांजैक्शनल वैल्यू. ट्रांजैक्शनल वैल्यू मतलब, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है कि इट, फॉर एग्जांपल, आप जब भी 500 माइनस 400 करते हो, सो माइनस 100 जो आता है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अ करेंसी और इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन. ओके, यू कैन नॉट पे मोर देन व्हाट यू हैव. आपका बैंक अकाउंट कभी माइनस में नहीं जाता, बिकॉज इट हैज सम नोशनल वैल्यू और ट्रांजैक्शनल वैल्यू. सिमिलरली यहाँ पे जो सेल्स है, दिस सेल्स हैज सम नोशनल वैल्यू. मतलब यहाँ पे जो 221 दिख रहा है, इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कस्टमर ने बिजनेस को पे किया है. सो देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस, so that's why it should be a currency and not a number. Clear? In case of a number क्या होता है, मान लो आपके पास it's just a number, then आपको पे करना है 500 बट अकाउंट में है सिर्फ 300. सो डेफिनेटली 300 माइनस 500, तो माइनस 200 हो सकता है ना. मतलब नंबर्स कैन गो इनटू अ माइनस एज वेल. देखिए माइनस 200, बट इन रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस cannot go into a minus. Clear? So that's why it is preferred whenever you have such columns such as sales, okay, or budget, ऐसे कुछ columns है, तो you should keep it them a currency. समझ में आया? Understood the difference between currency and number, because it has some notional value. So right click, currency, format change, currency. कौन सा currency चाहिए यहाँ पे फिर? Yes, there are multiple options. ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे options है, कौन सा है? Definitely we are dealing with US का डेटा है, तो डॉलर वगैरह सिंबल आप चूज कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे डॉलर है, या यूनाइटेड स्टेट्स, राइट. प्रेस. So this is how you will easy to identify as well कि यहाँ पे कुछ डॉलर ऐसा सिंबल दिख रहा है, उस सिंबल का मतलब भी करेंसी है, एंड also it has a notional value. Clear? Understood everyone? Good. Then what about quantity? Quantity क्या होना चाहिए? Number. Yes, absolutely number.
So either you can select right click or directly shortcut choose कर सकते हो. Home tab में जाइए यहाँ पे and you can choose number from here. Second is the number, right? आपको ये देखिए डॉट करके 00 आया है, ये हटाना है तो यू कैन एडजस्ट द प्रिसीशन. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से एडजस्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सपोज शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड लेस देन, ये देखिए ऐसे एक्यूरेसी आप सेट कर सकते हो. लाइक ओके, क्लियर, गुड. व्हाट अबाउट डिस्काउंट? डिस्काउंट का क्या सीन है? परसेंटेज. परसेंटेज. क्यों परसेंटेज? बिकॉज जनरली डिस्काउंट इज ऑफर्ड इन द परसेंटेज. किसी मॉल में जाते हो, शॉप में जाते हो तो ऐसा नहीं लिखा रहता ना 0.1 is your discount today. It is always in the terms of the percentage so that you can easily apply the minus जो भी है, right? मतलब discount is mostly observed in the percentage. So select shift control down, right click, format cells. You will see the data type called percentage. By the way, one of the interesting fact is परसेंटेज डेटा टाइप ये मोस्टली एक्सेल में ही अवेलेबल है, एक्सेल और पावर बीआई. पाइथन, सीक्वल, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो उसमें नहीं है. ओके, सो डेफिनेटली यू शुड सेलेक्ट अ परसेंटेज हियर. परसेंटेज, ये देखिए डायरेक्टली आइडेंटिफाई. ओके, देन नेक्स्ट वन इज, चलो क्विकली, नाउ इट इज इंटरेस्टिंग, प्रॉफिट. यस, प्रॉफिट बताइए क्विकली क्या आएगा? करेंसी. Currency. Okay, and why so? Because Why sir, it is currency? again amount. Yes. So again, the currency has its own value, right? जब भी आप प्रॉफिट और एनी मार्जिन इसके बारे में डिस्कस करते हो तो जनरली इट इज termed as a currency. Okay, let me make it currency, format cells and go to currency. Okay, but यहाँ पे still एक doubt है. Let me ask you that question. ऑस्ट्रेलियन यूएस यहाँ पे. ओके, तो हो गया. दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ करेंसी, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट एज अ करेंसी. बट यहाँ पे फिर आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला था माइनस में कभी नहीं जाता, बट इफ यू ऑब्जर्व दिस वैल्यू इट इज इन माइनस. तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? यस, क्या हो सकता है इफ प्रॉफिट इज -90? क्या हो सकता है इसका आंसर? डेफिनेटली इट मीन्स लॉस, राइट? हाँ, लॉस हो सकता है ना. जैसे जियो ने एक साल आपको फ्री में दिया था नेट पैक वगैरह, तो क्या हुआ था उस टाइम जियो को? यस, लॉस, राइट? सो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी रहते दैट टाइम यू कैन use the currency as well because there can be a product which are loss making. Yes, no. So loss making product भी हो सकते हैं. Okay, good. So that's why you see this minus and you see this लॉस ऑफ सेल दिखा सकता हूँ क्या? मतलब मान लो सेल्स में मैंने लिखा है यहाँ पे -200. इज इट पॉसिबल? मतलब किसी आदमी को मैं मोबाइल भी दे रहा हूँ और ऊपर से 200 रुपए भी दे रहा हूँ. दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट? माइनस सेल्स मतलब. सो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस. और ये बिजनेस जो बिजनेस रिलेटेड जो ट्रांजैक्शनल वैल्यूज है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर्स एज वेल एज करेंसी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. The next shipping cost, Currency. currency. Shift control down, right click, format cells and currency. Like this, we can use a US dollar. Okay,
देन ऑर्डर प्रायोरिटी, यस ऑर्डर प्रायोरिटी का क्या आना चाहिए, हाउ शुड आई डू इट एंड व्हाट शुड आई डू इट. चलो आई वांट somebody else to answer. या किरण, कावेरी, काजल, क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द डेटा टाइप फॉर ऑर्डर प्रायोरिटी कॉलम. Yes, is it so difficult? Hmm? Text. Text, right? Absolutely, it's a text. Yes, बताइए अभी फिर कैसे करना है. Right click. Format cells. Okay, right click, format cells, Text. text. Is it done or something is missing? Select all rows. You should select all the data, right? All the values. कैसे करना है all Yes. select all? Shift down. Okay, yeah. Thank you. So shift control down, right click and format cells, text. Good. So this is how you can do it. Clear? Understood everyone how we can do the data formatting? Let me remove. Everyone clear? Now, Yes, sir. okay. I will take quick example. Take one of the example already ready for you. चलो HR पे हमने डेटा अंडरस्टैंडिंग किया है इस डेटा सेट पे. तो क्विकली अभी बताइए फर्स्ट नेम लास्ट नेम का क्या होना चाहिए डेटा टाइप. Text. Text. Okay, good. I can select both even initials and department also, right? So Yeah. shift control down, right click and text. Next, grade का क्या आएगा? Text. Hmm? Text only. Grade का? Okay, it is a combination of number and alphabet, so I will keep it as a general. Okay, will not put under anything. Will keep it as general. चलो ये दोनों का number, right? Experience, Number. right? So format shell. This becomes a number. Sorry, just a second. By the way, आप दिख रहा है ना ऑप्शन स्क्रीन एंड Yes. देयर इज अ बिट Yes. ऑफ लैग फ्रॉम माय साइड. ओके जेंडर यू नो ऑलरेडी. चलो सीटीसी, सीटीसी इज इम्पोर्टेंट. बाय द वे सीटीसी पता है ना सबको क्या रहता है. Yes. सीटीसी इज नथिंग बट योर कॉस्ट टू कंपनी, मतलब आपका एक साल का पैकेज और एक साल का पगार और सैलरी इज नथिंग बट अ सीटीसी और कॉस्ट टू कंपनी. ओके, तो बोलिए इसका डेटा टाइप क्या आएगा. Currency. करेंसी, श्योर. नंबर Yes. करते हैं ना, नंबर भी वर्क होगा. हाँ नंबर भी चलेगा. चलेगा ना. यस, ऑनलाइन. एनी अदर ओपिनियन? शुड वी पुट इट अंडर करेंसी और शुड वी पुट इट एज. Currency. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कितने लोगों को नंबर लगता है? क्विकली टाइप एन, चैट में एन टाइप कीजिए करेंसी, जिनको लगता है वो सी टाइप कीजिए. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है. ओके, करेंसी, व्हाई नॉट नंबर? सपोज जो लोगों को लगता है अभी भी नंबर और दे फील डाउट इन कंफ्यूजन है. लेट्स सी आप किसी कंपनी में ज्वाइन आपने किया है एंड यू गॉट अ, एक महीना आपने काम किया और आपको बाद में सैलरी मिला. एंड इन केस ऑफ अ सैलरी मैं एक काम करता हूँ, एक पेपर पे कितना सैलरी है आपका, सपोज 1 लाख, 1 लाख रुपए ऐसा लिखता हूँ पेपर पे एंड आई विल गिव इट टू यू दैट पेपर. विल दैट वर्क एज अ सैलरी? 1 लाख ऐसे लिखता हूँ पेन से, दे देता हूँ और बोलता हूँ ये तो नंबर है.
We decided to pass only number, right? चलता है क्या कि आपको और कुछ चाहिए? Are you able to understand the basic difference? जब भी आपको सैलरी मिलता है दैट इज नथिंग बट अ करेंसी जो आगे जाके आप कुछ ट्रांजैक्ट करते हो उससे, मतलब ट्रांजैक्शंस करते हो और उसका कुछ यूज करते हो, राइट? You use that to buy something, to purchase, invest. So that has a transactional value. So it has to be in a currency. Right click, format cells and currency. Clear? सबको समझ में आ रहा है क्या? Why it is? Because this is important. Then date of joining. बोलिए date of birth even. क्या है ये? क्यों है? क्या आ रहा है? First of all, there is a number. So clearly I can see there is a mismatch of data types क्योंकि कॉलम का नाम अलग है, उसके अंदर का डेटा अलग है. So I should fix. कैसे फिक्स करना है? Anyone? Date. Date format, right? Shift control down and there is a date. Right click, format cells and date. Clear? Understood? So this is how you can format the entire data. पूरा data formatting आप ऐसे कर सकते हो. There is still one option is left. Let me give you that hint. Or suppose ये जो पूरा डेटा है, कैन आई से इट इज रिलेटेड टू वन अनदर? मतलब कल जाके मैंने यहाँ पे कुछ सॉर्ट लगाया और ऊपर नीचे किया वैल्यूज और नंबर्स. शुड माई इंटायर कॉलम चेंज? मतलब पूरा कॉलम चेंज होना चाहिए कि सिर्फ एक कॉलम चेंज हुआ तो चले? और इन आई विल पुट इट इन अ बेटर वे. लेट्स सी, सपोज ये सुपर स्टोर का डेटा है एज एन ट्रांजैक्शन से. इसमें मुझे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट चाहिए. तो हाउ विल आई फाइंड इट आउट? चलो बताइए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. Yes, anyone? How to find out loss making product? Negative values. Okay, good. Let's see then कौन कौन से नेगेटिव वैल्यूज है. ये है क्या? नहीं है. ये है क्या? नहीं है. ये है क्या? नहीं है. ये है? हाँ है. चलो लिख के रखो फिर. तो ये नेगेटिव है, फिर उसके बाद ये, फिर ये. ऐसे ही चेक करना है ना. यहाँ पे भी दिख रहा है. यस, दिस इज व्हाट यू मीन और कुछ अलग आइडियाज है आपके पास? My question is I want to find negative values. और let's see, मुझे ये यहाँ पे negative values दिखाना है पहले तो इसमें. Yes, anyone knows how to do it? कैसे कर सकते हैं? There is one simple method okay, called sort. What if मैं ये पूरा डेटा ascending नहीं तो descending order में set करूँ? Okay, for example, I will start with the 0 and go in the increasing order, नहीं तो decreasing order. Will this work? Sorting करूँगा तो work हो जाएगा? I can easily find out. और ऐसा ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है सॉर्ट. सो व्हाट इट डज इज इट फिल्टर्स और इट अरेंजेस द वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेट्स डू दिस. कैसे इंप्लीमेंट करते देखिए इसे. गो टू डेटा, सॉरी, गो टू होम टैब. ओके, देन पहले तो डेटा सिलेक्ट कर लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी. गो टू होम, क्लिक ऑन सॉर्ट and click on smallest to largest. It gives some error और कुछ warning देता है. Let me click this, continue with the selection and execute.
हो गया ये देखिए अभी नाउ दीज आर द मिनिमम वैल्यूज फिर मिनिमम से मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यूज चेंज हुए बट इज इट राइट क्योंकि मेरा ये पूरा रिकॉर्ड तो चेंज नहीं हुआ पहले सैमसंग का सैमसंग ही है यहाँ पे फोन्स का फोन ही है सेल्स का भी सेम है वैल्यू सिर्फ डिस्काउंट प्रॉफिट कॉलम चेंज हो गया ये डेटा करेक्ट है कि कुछ गलत है इसमें वापस इज इट रॉन्ग और ऐसे ही वर्क होता है बाय द वे आप जब शुरू किया था आपने तब तो सैमसंग को One Y3 प्रॉफिटेबल था अभी तो आपने नेगेटिव लॉस मेकिंग कर दिया उसे यस इज इट करेक्ट नो राइट बिकॉज यू आर ओनली सॉर्टिंग आपने जो चेंज किया वो सिर्फ एंड सिर्फ ये कॉलम से चेंज किया बट इफ यू ऑब्जर्व ये पूरा डेटा एक पूरा रो रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉफिट रिलेटेड है डिस्काउंट से क्वांटिटी से सेल्स से प्रोडक्ट नाम से सब कैटेगरी ये सब के ऊपर डिपेंडेंट है इट्स नॉट इट इज ओनली अ सिंगल कॉलम राइट लेट मी डू कंट्रोल Z देखिए अभी का प्रॉफिट कितना है so the moment if I want to make changes it should change everything पूरा सारे रोज चेंज करना पड़ेगा मतलब सारे कॉलम के बीच मुझे एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा so that once I make changes in any of the column सारे कॉलम के ऊपर वो चेंज होना चाहिए ऐसे clear so this is what I want to achieve तो ये अचीव करने के लिए there is a shortcut एक शॉर्टकट है पहले तो आप मुझे बताइए कि how will you tell एक्सेल में आप एक्सेल को कैसे बताओगे कि ये प्राइस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है और ये प्रॉफिट डिस्काउंट के ऊपर है क्वांटिटी के ऊपर है सेल्स के ऊपर है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है हाउ विल यू टेल मतलब एक्सेल को बताना पड़ेगा ना कि जब भी सॉर्टिंग प्रॉफिट पे होगा दैट टाइम यू शुड चेंज एवरीथिंग नॉट ओनली द स्पेसिफिक पॉइंट सो जस्ट टू फिक्स एवरीथिंग मतलब ये इनके बीच रिलेशन बिल्ड करने के लिए सारे कॉलम के बीच रिलेशन बिल्ड करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड टेबल फॉर्मेट तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यू गो टू इंसर्ट देखिए इंसर्ट में एक टेबल नाम का डेटा टाइप अवेलेबल है विच यू यूज इसे यूज करने के लिए सिंपली यू सिलेक्ट एवरीवेयर इन द टेबल टेबल में कहीं पे भी डेटा होगा तो वहां पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल इंसर्ट में टेबल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए देन इट विल शो यू एग्जैक्ट डिटेल ये देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन आ जाएंगे आपके डेटा के आराम okay this green dotted line are nothing but how nothing but the data identification मतलब एक्सेल ने अपने आप आइडेंटिफाई किया है जो भी डेटा आपको यूज करना है एंड देन हेडर वगैरह है आपके कॉलम वगैरह नाम है आपके कॉलम को तो क्लिक कीजिए एंड प्रेस ये देखिए इसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा एंड देन you will see a new option available here table design if I click outside तो ये चला जाएगा but the moment I click inside ये टेबल के अंदर तो ये दिख रहा है and you get already बहुत सारे कस्टमाइजेशंस आपको मिल जाते हैं टेबल रिलेटेड कुछ भी करना है तो आपको टेबल डिजाइन नाम के नए टैब में आना पड़ेगा और यहाँ से सारे मॉडिफिकेशंस आपके होंगे ओके फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो ऐसे कलर है फॉर्मेटिंग है ऐसा कुछ करना है चेंज वगैरह तो आप ये कर सकते हैं ओके देन देयर आर फ्यू मोर है देखिए हेडर वगैरह निकालना है ये ऐसे कुछ करना है ओके ये कुछ ब्रांड करना है लेट मी पुट इट हाँ ओके कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो यू शुड यूज द टेबल फॉर्मेट एज वेल एज डुप्लीकेट रिमूव करना है आगे जाके समराइज करना है तो यहाँ पे आपको रख सही मतलब यू कैन यूज क्लियर everyone so this is how you can identify now what you wanted a loss making product right abhi if you go to okay let me change the font by the way home tab में मैं aesthetics change कर रहा हूँ font put it a black or put it some different color yes so now I wanted a loss making product right तो आप profit के ऊपर simply यहाँ पे कर सकते हो smallest to largest so
along with this data सारे कॉलम्स भी चेंज हो गए हैं। तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट कौन सा है? Motorola smartphone is my loss making product, biggest loss making product, top 2 loss making products यहाँ से, right? Something like this. कौन से रीजन से है, कौन से कंट्री से? ओके, these are from European market. Biggest loss making country Germany, right? Category is phone, okay? और डिस्काउंट देने के बाद आपको लॉस हो रहा है, मतलब इट इज डेंजरस प्रोडक्ट जहाँ पे डिस्काउंट देख के भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसका। सो यू शुड रिमूव immediately these options. Okay, this product has to be sold out immediately or removed from your shop because it is a loss making item. Clear? समझ में आया how you are dealing with टेबल फॉर्मेट? इसका और एक एडवांटेज है, लेट्स सी। सपोज आपके पास डेटा एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना सेल हुआ, टोटल कितने क्वांटिटीज आपने बेचा, फॉर एग्जांपल टोटल शिपिंग में कितना खर्चा हुआ और मिनिमम शिपिंग में कितना खर्चा हुआ, मैक्सिमम कितना हुआ, एवरेज कितना हुआ, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो हाउ व्हाट यू कैन डू इज सिंपली गो टू टेबल डिजाइन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल रो दिख रहा है यहाँ पे। सो यू सिलेक्ट दैट, नीचे आपको एक नया रो ऐड होगा टोटल, और इसका एडवांटेज क्या है कि इट विल क्रिएट विदाउट इवन फॉर्मूला। मान लो आपको सेल्स का चेक करना है टोटल, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको उससे रिलेटेड। मिनिमम सेल चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, टोटल सेल चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, काउंट चाहिए, ये सब मिलेगा। एवरेज सेल चाहिए, टोटल सेल्स निकालना है तो सम, सो दिस इज द टोटल सेल्स। टोटल काउंट निकालना है, देखिए टोटल क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी, ये देखिए 1 मिनिमम बेचा है हमने, फिर मैक्सिमम लाइक दिस। एवरेज डिस्काउंट कितना किया है, ऑन एन एवरेज हमने डिस्काउंट कितना दिया है 5.26%। ओके, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप बेचोगे तो उसमें ऑन एन एवरेज 5% डिस्काउंट है। ओके, देन सिमिलरली प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है आपको फाइंड आउट करना है, तो यू कैन यूज सम। शिपिंग कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है, टोटल शिपिंग कॉस्ट, सो दिस इज एवरेज, टोटल है तो टोटल, सम आप यूज कर सकते हैं। मिनिमम शिपिंग कॉस्ट कितना है, ओ 1 रुपीज, मैक्सिमम कितना है, तो 900 रुपीज, सॉरी $900 है। ओके, लाइक दिस यू कैन स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूलाज। आपको मैन्युअली खुद से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। वंस यू सेट द टेबल आपने डेटा टाइप सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? सो जस्ट टू रिवाइज, वी स्टार्टेड विथ समथिंग डेटा अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो हमने एचआर रिलेटेड कुछ डेटा अंडरस्टैंड किया, कौन से कॉलम है, क्या है, इसमें आपको होमवर्क दिया कि इनिशियल का जो कॉलम था उसका यूज कहाँ पे होता है। okay? Then we understood CTC, date of birth, date of joining, उसके बारे में। Then a simple understanding, not much complex. Then second stage में we started understanding the data types, अलग अलग टेक्नोलॉजी में कैसे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, और कोई भी डेटा, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी डेटा यूज किया है, दिस इज फ्रॉम अ SQL सर्वर, व्हिच इज SQL सर्वर से ये आएगा, नहीं तो मार्केट से आएगा, राइट? अलग अलग एरिया से ये आ सकता है। So what you can do is, if it is coming from some different sector or different technology, you will have high chances of data mismatch, मतलब data type mismatch के बहुत ज़्यादा chances है। तो if you want to address that, we used the option called format cell, और उसके अंदर appropriate data types हमने select।
डेट है तो डेट, नंबर है तो नंबर, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, परसेंटेज है तो परसेंटेज, क्वांटिटी है तो अगेन नंबर, राइट. देन we discussed about the currency, sales और आपका CTC. ये सारे कॉलम हमने करेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए. For example, currency means it has some transactional value or a notional value. That's why we use a currency. If it is a plain simple number, so we use a number as a data type. Right? Here, so this is how we can use, or this is how you can एडजस्ट द डेटा टाइप. मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका डेटा टाइप आप एडजस्ट कर सकते हैं. ओके. देन एट द एंड वी अंडरस्टूड हाउ टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन ऑल द कॉलम्स. सारे कॉलम के बीच कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है सो दैट मैं कुछ भी कैलकुलेट करूँ. ओके. इफ आई चेंज एनी कॉलम, entire table should get changed, right? मतलब पूरा टेबल चेंज ऐसे. Okay. So if that is the case, then we use something called a table format. जो insert table आप कर सकते हैं. Insert tab में you can select a table. Good. Understood? Yes, sir. Excellent. तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके. होमवर्क यही रहेगा. जो डेटा सेट्स अवेलेबल है डे 3 या डे 4 में, जो फाइल्स दिख रहे हैं आपको, इसमें भी अलग अलग डेटा सेट्स हैं. ओके. फॉर एग्जांपल देखिए डे 3 डे 4 में वो डेटा टाइप्स आपको चेक करने हैं. एंड जो मैंने 3 वेबसाइट्स आपको दिए थे, एज एन आई विल सेंड इट इन द ग्रुप एज वेल. उस 3 डेटा सेट्स में से कोई भी डेटा आप उठा लो और उसके ऊपर डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है. ओके. यस, नो, अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay then, so if everything is clear, then maybe we can take a break here for today. Okay, कल के आपके जो activities होंगे, that message you already received in the group. Okay, and we'll meet again on Monday. Okay, Monday we मिलेंगे with further topics. So data understanding and data formatting is clear, then we are good. Yes, Kiran, you have any question? If you have any question, please let us know so that we can address it. No. Oh. Okay, good then. So thank you. Thanks a lot everyone for your time. I will upload all the lectures over the. हेलो. Yes. हाँ सर, वो लास्ट में जो आपने बताया हाउ टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन ऑल द कॉलम्स ऑन सेल एक्सेल, हाँ. वो वापस से रिपीट चाहिए था. Okay. So ये देखिए, if you want to build a relation between this and this, rather not only 2 column but सारे column के साथ, क्योंकि कोई भी आप manipulation करते हो डेटा में, वो सारे डेटा पे होता है, not only to the specific column or specific row. तो you need to build a relation between different columns. मान लो कल जाके मैंने प्रॉफिट चेंज किया तो सारा डेटा चेंज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है, दिस इज फॉर दिस रिकॉर्ड. इस रिकॉर्ड के लिए ये प्रॉफिट है, राइट? इस रिकॉर्ड के लिए ये प्रॉफिट है, सो दैट्स व्हाई इट शुड चेंज ऑटोमेटिकली. तो ये डिपेंडेंसी डेवलप करने के लिए और रिलेशन बिल्ड करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड टेबल फॉर्मेट. देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज वी ऑलरेडी यूज्ड, राइट? यहाँ पे इंसर्ट एंड सिंपली यू नीड टू क्लिक दिस. एक बार क्लिक किया आपने तो यहाँ पे देखिए आप टेबल डिजाइन करके एक नया ऑप्शन ओपन. ओके, जो क्लिक आउटसाइड ये चला जाएगा ऑप्शन.
आप डेटा के अंदर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आ अंडरस्टूड. Yes, no. Hmm. So once you insert the table, you can do the formatting. Good then. So that's it from my side. Thank you. Thanks a lot. I am